आप ऐसे ब्लैंकेट कंसेंट नहीं दे सकते हो किसी भी चीज़ के लिए. आपको जानना ज़रूरी है. कंसेंट इज स्पेसिफिक. You have to know what you are consenting to. They're deeply in love, it's extremely passionate, their eyes meet and it's like fireworks, ऐसा सब बोलेंगे. फिर उसके बाद में you're like, okay sir, but हाथ और पैर क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं चाहिए, डायरेक्टर को नहीं चाहिए. डायरेक्टर को अगर चाहिए भी, वो डिस्कस नहीं हुआ था. तो पहले आप रोक के डिस्कस कर लो, फिर अगर आपको शूट करना है तो ठीक है. बट प्रोसेस है. They don't want to say the word orgasm, so they'll say, and I want to see climax. And then they found one little loop of like 3 moves that they feel comfortable doing, and वो 3 चीजें ही कर रहे हैं. Neck, face, neck, face, neck, face, neck, face, neck, shoulder, face, neck, face, neck, face, neck. Welcome to the Devina Banerjee Show. Lights, camera, but wait. Before the action begins, there's someone ensuring everything is safe, respectful, and dare I say, steamy in the most professional way possible. Meet the woman who choreographs intimacy like a dance, making sure on-screen chemistry sizzles without crossing boundaries. She's the first ever certified intimacy coordinator in India, the guardian angel of actors in vulnerable scenes, and the mastermind behind Gehraiya and the Fame Game's most talk about moment. Please welcome the fearless, the fabulous, and the one and only Astha Khanna. Welcome to the Devina Banerjee Show, Astha. Thank you. It was well needed because, सिर्फ मैं एक पॉडकास्ट होस्ट नहीं हूँ. मेरे हस्बैंड एक फिल्म एक्टर है, तो वो काफ़ी सारे सीन्स करते हैं इन फिल्मों में. तो मुझे आज नहीं, मुझे कल भी, परसों भी, और कई सालों से, मतलब मुझे जब भी मतलब मेरे हस्बैंड की फिल्म रिलीज़ होती है, मुझे सवालों के बौछार आते, हाउ डू आई फील. सो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस को ये जानना ज़रूरी है कि किस प्रकार से ऐसी सीन्स शूट होते हैं और आजकल कैसे शूट होते हैं, कैसे होते थे, एंड ऑल दो स्टफ. तो what inspired you to become this certified intimate scene coordinator? इतना कुछ बड़ा इंस्पिरेशन नहीं था, एंड इट्स नॉट वन लाइक यूरेका मोमेंट काइंड ऑफ स्टोरी. मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं एक फिल्म पे काम कर रही थी as an assistant. You were an assistant director. An AD. The director of the film shared an article of Vanity Fair with me, which was about intimacy coordinators and how Hollywood was adopting them, and how there were intimacy coordinators now for all HBO shows. There was a mandate that was put out. So there was this article on it. And the director told me, why don't we reach out to somebody who is in the West to try and figure out what are the protocols that they're putting in place. फिर हम उन protocols में से देखेंगे कि हम क्या adopt कर सकते हैं और हम अपने sets पे क्या ला सकते हैं. तो क्योंकि हमारी particular film में बहुत इंटीमेसी थी. दिस इज़ प्री कोविड. तो कोविड से जस्ट पहले मुझे पता चला कि इंटीमेसी कोऑर्डिनेशन क्या होती है, एंड फिर मुझे वो इतना इंटरेस्टिंग लगा एज अ कॉन्सेप्ट, because we were just coming off of the back of the Me Too movement in India. As an industry, एक चीज़ हमने जो करी है with the posh committees and with the seminars and the corporate structuring of like teach everyone कि ये harassment है, ये harassment है, ये harassment है, मत करो मत करो. एक बहुत important point है कि posh committee, sexual harassment committee, ये सारी helplines वगैरह after the fact use होती हैं. हाँ, हो गया अब क्या करें. हाँ, तो पॉइंट इज कि अगर आप प्रिवेंट कर सकते हो तो आप प्रिवेंट क्यों नहीं करोगे. एंड वो मुझे हमेशा खलता था कि चल हो तो गया, फिर अब बोल रहे हो कि अच्छा दोनों बैठो और बताओ, अब हम बोलेंगे वेदर यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ और यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ. दैट यूज टू बॉदर मी कि इसका कोई बेटर मेथड होना चाहिए. एंड व्हेन इंटिमेसी कोऑर्डिनेशन के बारे में मुझे पता चला, देन आई वाज लाइक ओके, ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आपके पास में सेट पे एक बंदा है जो ध्यान रख रहा है कि कुछ बाउंड्रीज क्रॉस नहीं हो रही, जो वो कॉन्वर्सेशंस कर रहा है कि कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं है बिटवीन पीपल, कोई लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है विद रिगार्ड टू. जाके कोई नहीं बोल सकता दैट इट वाज नॉट इन द सीन. हाँ, कि बताया नहीं था हमें कि ऐसा करना है. एज एन एक्टर विल ऑल्सो नॉट बी इन अ पोजिशन जहाँ पे उनको ऐसा कर्व बॉल मिलेगा, आज सुबह पता चल रहा है कि मुझे इंटिमेसी सीन करनी है. एज अ डायरेक्टर के नॉट टर्न अराउंड एंड से कि एक्टर ने लास्ट मिनट पे अपना मूड चेंज कर लिया और मेरा सीन खराब हो गया.
you know, all of those situations you tackle. So as an intimacy coordinator, you end up supporting production because you're making sure कि सब चीज़ें अबव बोर्ड हो रही हैं, सारा पेपर वर्क हो रहा है, सारा कॉन्वर्सेशन पहले से हो रहा है. एक्चुअली मुझे ये थोड़ा सा मतलब समझना है कि जैसे एक फिल्म जब होती है ऑन पेपर, उसमें जैसे डांस सीन कितने सारे सॉन्ग्स होंगे, हाँ, वो पहले से स्ट्रक्चर हो जाता है. कभी कभी लास्ट मोमेंट भी होते कि एक सिचुएशन में लगा कि इधर एक गाना फिट बैठेगा तो वो हो जाता है. तो इंटीमेट सीन के बारे में भी क्या सडनली भी मतलब प्लान हो सकता है? पहले हुआ करता था. एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न उसका ये था कि डायरेक्टर्स चाहे सोचते थे कि उनको, ये डायरेक्टर्स या राइटर्स सोचते थे कि यहाँ पे एक इंटीमेसी सीन डाल सकते हैं, पर अगर एक्टर्स अनकंफर्टेबल फील करेंगे या उनकी वाइब नहीं आएगी या केमिस्ट्री ठीक से नहीं बैठ रही होगी तो नहीं करेंगे, पर अगर हो रहा होगा देन विल पुश द एनवेलोप. तो वो कॉन्वर्सेशन पहले करते ही नहीं थे अपने एक्टर्स के साथ में, बिकॉज आप वो कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करना चाहते हो. एज अ सोसाइटी हम कॉन्वर्सेशंस जिनमें टैबू होता है वो अवॉइड करना चाहते हैं, जो थोड़ा शेम पैदा करती हैं इन द वे दैट यू आर कम्युनिकेटिंग, उसको आप अवॉइड करना चाहते हो. तो इवन इन अ स्पेस ऑफ वर्क, बिकॉज करेक्ट वोकैब्युलरी नहीं है लोगों के पास में टू कम्युनिकेट कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या रीजनिंग है उसका, बहुत बार ऐसा होता था कि वो कम्युनिकेट ही नहीं करते टिल द लास्ट मोमेंट कि ऐसे करना है. सो समथिंग एज सिंपल एज आपके स्क्रिप्ट पे लिखा होगा एंड दे मेक पैशनेट लव. अभी एंड दे मेक पैशनेट लव का तो कुछ भी मीनिंग हो सकता है, राइट? आपको ये एंड दे मेक पैशनेट लव का मतलब ये हो सकता है कि दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के दरवाजा बंद कर दें और आप इमेजिन कर लो. हाँ. एंड दे मेक पैशनेट लव का मतलब है कि फूल खिले गुलशन गुलशन, वो भी हो सकता है. हाँ हाँ, या फूल खिले गुलशन गुलशन, दो फूल आ गए साथ में, दूध उबल के बाहर आ गया, व्हाटएवर, और लाइक यू नो फायरवर्क्स, किस पैन अप टू फायरवर्क्स, बस काम खत्म. You know, it could be anything. Right? But and they make passionate love could also be, इसमें nudity है, इसमें simulated sex है, इसमें मुझे climax देखना है, इसमें एक एक्टर के फेस के ऊपर मैं orgasm shoot करूँगा. It could be that too, right? It could also be, if I take this exact same conversation to अगर violence के बारे में बात हो रही है, sexual violence also comes in intimacy coordination. तो अगर हम sexual violence के बारे में बात करें, अगर एक स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है विक्टिम गेट्स ब्रूटली वायलेटेड, अभी उन्होंने क्लियरली नहीं लिखा है कि क्या वायलेशन होगा, कितना वायलेशन होगा, व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल मूवमेंट इज रिक्वायर्ड इन दैट वायलेशन, व्हाट आर यू गोइंग टू शूट एंड व्हाट आर यू गोइंग टू लीव अप टू द इमेजिनेशन ऑफ द ऑडियंस. तो वो सारी चीज़ें ब्रेक डाउन करके अगर हम एक कोरियोग्राफी ले आते हैं और हम वो कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने क्रू एंड कास्ट के साथ में, फिर सबको पता है, दे आर ऑन द सेम पेज कि हम ये चीज़ ऐसे शूट करने वाले, ये स्ट्रक्चर है एंड ये डायरेक्टर का विजन है जो हमें अचीव करने की कोशिश करनी है. एंड दैट्स व्हेन यू हैव द फुल नॉलेज ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग इनटू. एवरीबडी हैज द नॉलेज. करेक्ट. एंड ओनली देन कैन यू कंसेंट, वरना आप कंसेंट कैसे कर सकते हो? आप ब्लैंकेट कंसेंट किसी भी चीज के लिए नहीं दे सकते कभी भी इन लाइफ, राइट? अगर आप बोल दो सब कुछ ठीक है, आई एम ओके विद एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग. बहुत लोग ऐसे भी होता है, अरे आई एम वेरी कंफर्टेबल विद माई बॉडी, यू कैन डू एनीथिंग. हाँ, बट इफ आई सडनली डिसाइड टू get a chimpanzee to lick your armpit, you will not be okay with it, na? Or you won't be okay with somebody biting you on your chin if that's something that makes you uncomfortable. आप ऐसे blanket consent नहीं दे सकते हो किसी भी चीज़ के लिए. आपको जानना ज़रूरी है. Consent is specific. You have to know what you are consenting to. And only then can you give active consent. Otherwise, you are working in a space of non-consent. You're not working in a space of active, ongoing consent. And then a person can turn around and say, मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ होने वाला है. And then an actor can go back and 3 साल बाद also be like, मैं वहाँ uncomfortable था या मैं वहाँ uncomfortable थी. मुझे उस समय नहीं समझ आया, बट बाद में समझ आया कि वो जो मेरे साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था. Right? तो आपको वो अवॉइड करना है. एंड दैट्स द लॉजिक बिहाइंड द वर्क. अलॉन्ग साइड दैट द अदर लॉजिक इज ऑल्सो, जैसे कोरियोग्राफर एक्सपर्ट होता है डांस में,
एक एक्शन डायरेक्टर एक्सपर्ट होता है फाइट सीक्वेंसेस करने में, एक इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर इंटीमेसी डायरेक्टर एक्सपर्ट होता है मेकिंग श्योर कि कोई चीज़ ऑथेंटिक एनाटॉमिकली करेक्ट लग रही है, अदरवाइज ऐसा होगा कि आप एक पोजिशन में दो लोगों को बिठा रहे हो बट फॉर इंस्टेंस द गर्ल इज सिटिंग ऑन द बॉयज स्टमक एंड यू कैन टेल ऑन कैमरा कि ये चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड जब वो चीट कैमरा पे दिख रहा है तो वो एक्चुअली चीट हो नहीं रहा, एंड वो इमीडिएटली ऑडियंस को डिस्कनेक्ट कर देता है, एंड देन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द सेक्स सीन एंड नॉट व्हाट द स्टोरी इज, राइट? बट इफ इट्स वेल शॉट एंड इट प्लेज वेल इनटू द स्टोरी एंड वो ऐसे पंक्चुएटेड विथ इंटिमेसी टाइप सिचुएशन नहीं लगे इन अ स्टोरी, फिर वो ऑड नहीं लगेगा. हाँ, मुझे अभी समझ में आ रहा है कि कभी भी कोई भी चीज़ थोड़ा ऑड लगता है, अलग लगता है, तो हम उसी के बारे में डिस्कस करने बैठ जाते हैं, अरे ये देखो मतलब करके, और तुरंत हाँ एक डिस्कनेक्ट हो जाता है. सो इफ देयर इज नथिंग टू से, मतलब इफ इट गोज, मतलब जैसे होता है लाइक मैटर ऑफ फैक्टली अगर हो रहा है तो वो ऑडियंस को डिस्कनेक्ट नहीं करता है. हाँ, एंड देन वो फिर वो फ्लो में निकल जाता है एंड यू आर नॉट स्पेंडिंग सो मच टाइम thinking about it, then you're like, हाँ, they fell in love, they got married, उनकी सुहागरात हुई, move on to the next part of the story. You're not thinking के पर सुहागरात शूट करना ज़रूरी था क्या? Cause ये भी कॉन्वर्सेशन होती है ना एज एन ऑडियंस, यू फील कि क्या ज़रूरत है दिखाने की, सबको पता है क्या होने वाला है. हाँ. लॉट ऑफ सीन्स, आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ से गेम ऑफ थ्रोन्स. आप पूरा शो देखते हो बट आपके दिमाग में इंटिमेसी सीन्स बैठे नहीं हैं. यू आर नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट द सीन्स दैट इन्वॉल्व न्यूडिटी एंड सिम्युलेटेड सेक्स इन द शो. यू नो उसमें है, शो में है, बट यू आर मोर इन्वेस्टेड इन द कैरेक्टर आर्क, यू आर मोर इन्वेस्टेड इन द स्टोरी, यू आर मोर इन्वेस्टेड इन अब क्या होगा, ड्रामा क्या है. Exactly. एंड उसका रीज़न ये है कि उसमें इंटिमेसी बहुत मैटर ऑफ फैक्टली, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर फ्रेज, अच्छे से बिठाई हुई है एंड उसको एक ट्रीटमेंट मिली है दैट इज एक्यूरेट, क्रिएटिव एंड ऑल्सो नॉट स्क्यूड गेज. हाँ, मतलब ऑथेंटिक रखा है. हाँ. kept it as authentic as possible. Yeah. So is there any studies behind it, matlab something that you have done? I went through a training program which allowed me to be a certified intimacy coordinator. Education that I got was from an institute called Intimacy Professionals Association, which is based out of LA. It is accredited by SAG-AFTRA, which is the union and the actors performers union in America. एंड फिर मैंने उसी इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनर करके इंडिया में एक इंस्टीट्यूट खोला which is called the Intimacy Lab, which provides the same certification for intimacy coordinators to work in the Indian film industries, सारी language film industries के लिए. How lovely. So it is now like a contract, like wherein जैसे सब कुछ mentioned होता है, it's like that. I'm just want to know, like a layman, कि उसमें हर एक चीज़ आप mention करके रखते हो जिसमें signature होता है, ताकि बाद में कोई ना बोल सकता है तो मुझे नहीं पता था. एक पार्ट तो वो है कि there is paperwork that is involved. हम usually try करते हैं कि productions adopt करें the method of using riders. Riders are essentially like contracts, but the way that riders work is कि दो या तीन लोग जितने लोग इस conversation का part हैं वो सब agree करते हैं, वो सब sign करते हैं, but that at no point means कि consent cannot be reversible. Consent is reversible. A person can take away consent after signing something like that. Can be like, okay, I signed this, I was okay with it, but I'm uncomfortable, I won't shoot it. बट वॉट दैट डज इज़, जहाँ वो हेल्प करता है, अगर आपने लिखा हुआ है, अगर परफॉर्मर ने अग्री किया हुआ है, तो प्रोडक्शन के पास वो राइट है कि बिकॉज इट हैज़ बिन प्रीवियसली अग्रीड अपॉन, द प्रोडक्शन हैज़ द राइट टू यूज़ अ बॉडी डबल टू शूट द सीन्स हाउ दे मस्ट बी शॉट अकॉर्डिंग टू द विजन दैट वॉज अग्रीड अपॉन. आप फिजिकली खुद नहीं करना चाहते हो फॉर वॉट एवर रीज़न, आपका कंसेंट हम सपोर्ट करते हैं. वी कंप्लीटली अग्री दैट इफ यू कांट शूट, यू कांट शूट, बट इफ यू अग्रीड टू डू इट इन द बिगिनिंग,
you also agreed to the fact that if for whatever reason you can't shoot, a body double can come in and do the work. That way what it does is वो productions को भी safeguard करता है और एक्टर्स को भी एक्टर्स के परफॉर्मर्स के कंसेंट को भी अपहोल्ड करता है और एक्टर्स को भी सेफगार्ड करता है कि अगर उन्हें फॉर वॉट एवर रीज़न लगता है कि मैंने अग्री तो किया था बट मुझे अनसेफ फील हो रहा है और मुझे अभी नहीं करना, तो दे हैव द एबिलिटी टू से ओके मैं नहीं करूँगा, we can bring somebody else who can do the job. So you can use a digital double, you can use a body double to still get the vision. And also with a rider, जो paperwork हम usually try करते हैं that productions get it on paper, is the fact that जो भी पेपर पे लिखा होता है is the maximum amount that could possibly be used in a particular scene. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूडिटी जो रिक्वायर हो सकती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिम्युलेटेड सेक्स जो रिक्वायर होगा, कि क्या कॉस्ट्यूम पहना है, कौन से एक्टर के साथ में कर रहे हो, आपका को एक्टर कौन है, आप कितना लंबा सीन चाहिए फॉर कैमरा, कितना लंबा शूट हो सकता है और कितना और वेदर वो पर्टिकुलर स्निपेट आप ट्रेलर और मार्केटिंग में यूज़ करोगे. बिकॉज अगर आप कोई चीज़ एक फिल्म में या एक प्रोजेक्ट में फॉर द सेक ऑफ द स्टोरी एक पर्टिकुलर सीन कर रहे हो, वो अलग है फ्रॉम अगर वो पर्टिकुलर सीन यूज़ हो रहा है फॉर द मार्केटिंग पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोरी. वो भी अवेलेबल होना चाहिए एज अ कॉन्वर्सेशन टू बी हैड विद द परफॉर्मर कि हम ये यूज़ करेंगे मार्केटिंग में, हम ये यूज़ करेंगे ट्रेलर्स में, हम वी वुड लाइक योर कंसेंट फॉर दैट. Because what that does is it puts it on different screens. Anything that is trailer or marketing content is on Instagram, it's on advertisements, it's on wherever, right? Everywhere. Everywhere where there is a screen, you have somebody's in a vulnerable scene जो आप कट करके कैसे भी करके यूज़ कर सकते हो जब वो ट्रेलर्स में जाता है. बट जब वो when it is a part of a particular show or a thing, उसको पुल आउट करना एंड यूज करना आसान नहीं है, डिफिकल्ट हो जाता है कंपैरेटिवली. सो दैट इज अ कॉन्वर्सेशन ऑल्सो जो पेपर वर्क में करते हैं. ये भी मेंशन्ड होता है कि ड्यूरिंग द शूट कितने लोग उधर होंगे. या सो अ क्लोज्ड सेट एज एन इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर एंड अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट वी हैव इन दिस कंट्री, हम एक क्लोज सेट करते हैं फॉर अ सीन ऑफ इंटिमेसी बियॉन्ड if there is just kissing with clothes on, just kissing, no touching, no other touching, with clothes on के लिए if the actors don't feel they want a close set, that's fine. But anything beyond that, it is a regulated practice के हम closed set रखेंगे ही. And closed set का मतलब है 8 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते सेट पे. 8 to 10 people maximum on a film, on a set floor. And also what that means is कि वो footage regulated होता है in terms of वो particular footage, वो particular card की handling कैसे हो रही है, footage की handling once the scene has been shot, once it has arrived at DI, how it is being handled, how it is being flagged, whether it is going to the studio in raw format. All of that stuff is taken care of by an intimacy coordinator. माय गॉड, मतलब एक्चुअली सोच के ऐसा लगता है कि मतलब पहले भी होता था, अभी बस एक पोजीशन है उसको करने के लिए, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो पहले ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती थी. वी हैव हर्ड कि सडनली एन एक्टर सेड दैट्स नॉट मी, और उसको लेके भी बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुए कि वो मैं नहीं हूँ, वो बॉडी डबल है, और उसको लेके इतना बड़ा हंगामा हुआ था कि ये वो आर्टिस्ट है कि बॉडी डबल है. मुझे तो वो भी थोड़ा सा समझ में नहीं आया था. एंड टेलीविज़न में भी इनफैक्ट आजकल आई वुड नॉट से न्यूडिटी बट काफ़ी हद तक इंटीमेसी सीन्स शूट होते हैं. अभी नहीं, अभी आज से 10 साल पहले से शुरू हो गया था. वहाँ पे तो क्योंकि टेलीविज़न आई विल से कि
एक बाउंड स्क्रिप्ट में काम नहीं करता है. Correct. हाँ, तो वहाँ पे आज कुछ हो रहा है, कहानी उड़ते हुए कहीं और ही चला गया. मतलब देन देयर इज अ जनरेशन लीप, और वो मतलब देयर इज नो ताल्लुकात विद द स्टार्टिंग ऑफ द शो. तो वहाँ पे किस तरीके से होता है? इर्रिस्पेक्टिव, अगर आप शूट करने वाले हो एक इंटिमेसी सीन, कॉन्वर्सेशन आपको करनी है, वो एक्टर्स से एटलीस्ट 48 आवर्स प्रायर टू व्हेन यू आर शूटिंग वो कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी. You have to inform the actors in advance कि you want to shoot a scene of intimacy. Ideally, अगर आपके पास में आपने एक intimacy coordinator को hire कर रहा है, तो एक workshop भी होगा, एक conversation होगी, एक one-on-one conversation होगी about consent, boundaries. What are the sort of housekeeping rules of when you are shooting a scene? कैसे approach करना है? अगर नहीं है, फिर अगर आपने एक intimacy coordinator नहीं hire करा है, फिर भी यूजुअली ये कॉन्वर्सेशन होती है कि एक्टर्स एक दूसरे से बात करके फिगर आउट करते हैं कि हम ये सीन कैसे करेंगे, बिकॉज डायरेक्टर्स बहुत ऑफन बोलते हैं हाँ तुम लोग कर लेना, मैं कुछ तो शूट कर लूँगा या कर लूँगी. इन टेलीविजन अगर बाउंड स्क्रिप्ट नहीं है, वो पर्टिकुलर सीन के लिए इर्रिस्पेक्टिव एक बहुत क्लियर या तो रेफरेंस या बहुत क्लियर एक डिस्क्रिप्शन डायरेक्टर को देना पड़ेगा, because that is the first step of the intimacy coordinator's job when you're brought in on a job, that you have a conversation and you try and understand कि director का vision क्या है, क्या देखना चाहते हो आप कैमरा पे. and उसमें flowery language बहुत लोग यूज़ करते हैं initially, where they're like हाँ मुझे चाहिए that the two of them look like they are going to they're deeply in love, it's extremely passionate, their eyes meet and it's like fireworks, ऐसा सब बोलेंगे. फिर उसके बाद में you're like okay sir, but हाथ और पैर क्या कर रहे हैं? हाथ पैर मुंह सर किधर है? Because you have to get into the point, you have to be like अच्छा I understand the flowery language, but physically what are you seeing on camera? What are you going to make, what do you want them to do? That conversation needs to be had. कि बॉस ये पोजीशन होगा, आपको ये सपोज इफ इट्स अ किसिंग सीन फॉर इंस्टेंस, बिकॉज सिम्युलेटेड सेक्स नहीं होता टेलीविजन पे भी, GNC में एटलीस्ट, ऑन OTT बहुत है, बट ऑन जनरल टेलीविजन नेटवर्क इट्स नॉट देयर. तो जब सिम्युलेटेड सेक्स नहीं है तो इट्स यूजुअली लाइक अ चीट केस और लाइक अ two people coming close and वो romantic push in and all of that stuff. So if it is something like that, then you're like okay, you run through a consent exercise. Boss मेरे को लगता है एक बंदे का हाथ यहाँ होगा, एक बंदे का हाथ more or less इधर होगा, okay, and then you want them to, I want you to be on the neck, and then I want you to go near the ears, and then I want you to come to the face, and then I want you to lean in for a kiss and we'll cut. तो you have to मतलब इतना डिटेल में होता है, मतलब कोई मतलब इट्स लाइक, और टाइम नहीं है आलतू फालतू इधर उधर की बात करके, स्ट्रेट कट बताओ एग्जैक्टली क्या होने चाहिए वाला है. हाँ, स्ट्रेट कट करके बताओ एग्जैक्टली क्या होने वाला है. अगर दोनों लोग अग्रीएबल हैं, चुपचाप जाओ, शूट करो, काम खत्म. इट्स एक्चुअली द मोस्ट efficient way to go about it, not to leave anything for imagination or correct impromptu. Correct, because even as a performer or someone who is also in front of the camera, अगर आपको for instance कोई बोल दे कि अच्छा पर फिर तो तुम चले जाना कैमरा पे और फिर तो तुम कुछ कर लेना, एंड मुझे बस चाहिए बहुत एक्साइटमेंट कैमरा पे, you'll be like अच्छा but excitement how? What do you want me to say on camera? What is the script? What am I doing? And in any case with a scene that's so vulnerable, what happens is performers are very quick to assume the worst. You'll read something, you'll be like अरे यार इसमें intimacy डाल दी, एंड कितना इंटीमेसी है, क्या है, कुछ नहीं पता, अब ये कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी. एंड द बर्डन ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन इज़ कि अब मैं जाके पूछूंगा तो वो बोलेंगे, या मैं जाके पूछूंगी तो वो बोलेंगे दैट इतना क्या जानने का ज़रूरत है, और लाइक बताएंगे ना जब प्रेपरेशन हो जाएगा, और लाइक or they'll be like, oh, they're very concerned about the intimacy scene. Also, actors and performers feel very strongly that the burden of that conversation should not lie on them. It should not be कि वो आके आपसे 6 बार पूछ रहे हैं बट क्या सोच रहे हो, बट क्या करोगे, बता तो दो. It's a very stressful situation. It's a very stressful
position to put a performer in. That is for TV, क्योंकि आपके anyways daily regulars, आपका casting already हो चुका है, आपके day players and आपके series regulars सारे ऑलरेडी कास्ट हैं. ऑन फिल्म अगर आपकी इंटीमेसी सीन नॉन नेगोशिएबल सीन है कि ये स्टोरी के लिए बहुत पिवटल सीन है, हम इसको ज़्यादा चेंज अप नहीं कर सकते, तो देन आपको एट द कास्टिंग स्टेज ही ये कॉन्वर्सेशन कर लेनी चाहिए. योर परफॉर्मर्स आर अवेयर ऑफ व्हाट दे आर गेटिंग इनटू एट द कास्टिंग स्टेज ओनली. दे नो दैट ये सीन होगा इंटीमेसी का, आई एम ओके विद डूइंग अ सीन लाइक दिस, माई कंसेंट इज देयर, सो देयरफॉर आई विल ऑडिशन एंड आई विल ट्राई एंड गेट द पार्ट. बट after you have hired a performer, if you then throw this googly के अच्छा बट हाँ एक छोटा सा किस सीन है, हाँ तुम कर लोगे ना, ठीक है ठीक है ठीक है, तो then they're like you didn't tell me this earlier. And then it's a negotiation again कि डायरेक्टर इज़ लाइक हाँ बट मुझे तो करवाना है, तो अच्छा चलो इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर को बुला लो, वो कंसेंट चेंज कर देंगे. हम नहीं करते हैं किसी का भी कंसेंट चेंज. आई वांट टू नो एट व्हाट स्टेज डू यू एंटर द प्रोजेक्ट. मतलब ideally at the casting stage. Ideally when you start casting for a particular project, which is after your script has been greenlit and locked. Your shooting script may not have been locked, but your overall script has been locked. Then you know के डिमांड क्या है हर कैरेक्टर की एंड वॉट ऑल दे आर रिक्वायर्ड टू डू. मतलब इट्स वेरी सिंपल कि आप एक बंदा जिसको पानी से डर लगता है, आप उसको स्विमर का रोल नहीं दोगे ना. तो यू विल चेक फॉर स्किल सेट व्हेन यू आर कास्टिंग. So you need to also check for consent when you're casting. Bringing in an intimacy coordinator at the casting stage is ideal because the intimacy coordinator can work in tandem with the casting director to make sure that the right information is going out to all your casting calls. Very true. And then the performers that feel comfortable with it are the ones that are showing up to audition. जैसे कास्टिंग के टाइम अगर बोलते हैं ड्राइविंग आनी चाहिए, स्विमिंग आनी चाहिए, तो आप पहले ही बोल दो एंड दैट्स व्हेन द कास्टिंग. इस सीन में इंटीमेसी है एंड इट्स नॉट कि अच्छा इस सीन में इंटीमेसी है एंड यू लेफ्ट इट अप टू देम टू इमेजिन कि कितना इंटीमेसी है. सो इट्स लाइक इस सीन में दिस इज द पर्टिकुलर सीन वी आर ट्राइंग टू शूट. मोर और लेस एक स्टोरी बोर्ड या एक पिक्चर रेफरेंस या कोई एक रेफरेंस आप दे सकते हो कि इतना रिक्वायरमेंट है. एंड एक्चुअली kudos to I worked on a show called Class for Netflix and उसकी कास्टिंग स्टेज पे ही सारे परफॉर्मर्स को एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन डेक भेजी गई थी जिसमें उन्हें बहुत क्लियरली स्टेट किया गया था कि कौन से सीन्स में कितनी न्यूडिटी, कितना सिम्युलेटेड सेक्स, क्या मेकिंग आउट, क्या इंटीमेसी, क्या वायलेशन, क्या एक्शन, सब कुछ बहुत क्लियरली सेट आउट करके एट द वेरी बिगिनिंग सबको भेजा गया था कि बॉस जो भी है इसमें है और इससे कम ही होगा सेट पे. इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करते आपको कंसेंट करने के लिए. हम इसको कर्व बॉल करके वी विल नॉट बी लाइक अच्छा अब ये नहीं तो कुछ और करो. बट एट द सेम टाइम दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर दिस कैरेक्टर एंड if you have that clarity of that requirement, then you choose whether you want to do it at the beginning only or not. Of course, after that, the second bit is कि आपका co-performer कौन है, आपकी उनके साथ क्या रैपोर्ट है. आप जब एक एक्सपीरियंस करते हो शूट करना and being on a set for a little while, how comfortable you feel in that environment, how safe you feel in that environment. So those are all added levels or layers of consent. But to begin, at least you have signed, you know what you have signed up for when you walked in the door. That's what you want to make sure. So you actually like sit in between the actor and the director and explain what he wants and convey कि हम इतना कर सकते हैं या इतना नहीं कर सकते हैं. That also you convey, right? The conversation is usually me and the director or me and the creatives, intimacy coordinator and creative crew have a conversation to understand के क्या requirement है scene के लिए. What is the ideal vision of the scene? फिर आप वो vision in a one-on-one conversation with the performers के because they know कि as an intimacy coordinator, I have no power. I'm only there to interrupt a power dynamic. I'm not the person giving them a job. I'm not the person who's taking it away from them.
when you are in a conversation where there is a lot of power at play, there is Pressure and fear. and fear. So it's a very difficult position to put a performer in, to make them have that conversation directly with or the producer, the director. Right? It again depends on kitna successful performer hai, how much clout they have, how much experience they have, versus all of that. But there is nonetheless a power dynamic at play. But when you're sitting one-on-one with a performer as an intimacy coordinator, there is no power dynamic at play. And because of that, you can have a straight-up conversation of this I feel comfortable doing, this I don't feel comfortable doing. You have to convey this information. Ki this I'm okay with, this I'm not entirely sure I want to do. And then that information, as an intimacy coordinator, you take it back to the director and be like, okay, let's try and figure out a way how we can choreograph this by making sure that हम यूज़ कर रहे हैं जो कंसेंट हमें मिल रहा है, एंड हम अवॉइड कर रहे हैं जो चीज़ें जिसके लिए हमें कंसेंट नहीं मिल रहा. कभी ऐसा हुआ है दैट देयर वाज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, कुछ और डिस्कशन हुआ और जब शूट हो रहा है एक्टर्स कुछ और ही कर रहे हैं, मतलब बियॉन्ड व्हाट वाज एक्सप्लेन्ड? हाँ. उन सिनेरियो में आप क्या करते हो? बोलते हो कि नहीं हमारी ज़रूरत नहीं है? बोलते हो? अच्छा. बिकॉज आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. Which is why, you know, a lot of people when they ask me this question, do you ever see that a romance happens because two people are spending so much time together and doing intimacy scenes that they might, you know, catch feelings for each other. Yeah. It's not my prerogative. I'm very clear. मैं काम करने आई हूँ, मेरे को A पॉइंट से B पॉइंट तक सीन को लेके जाना है. आप A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाओ, फिर मैं कट बोल दूँ, फिर आपको जो करना है आप करो. आई एम वेरी क्लियर दैट जो रिक्वायरमेंट है सीन की आप वहाँ तक पुश कर सकते हो, बट आई डोंट वांट द स्कोप कि कल को हमें लग रहा है कि दो लोग कंसेंट कर रहे हैं या भावनाओं में बह गए हैं, बट उनमें से एक इंसान बोल दे कि बट मैं कंफर्टेबल नहीं था, मैंने बस ना नहीं बोला उस मोमेंट में. ओह राइट. तो वो पिटफॉल है और वो मैं अलाउ नहीं कर सकती. मतलब ये कुछ भी हो सकता है उधर, मतलब इट कैन बी कंसेंशुअल फ्रॉम बोथ द साइड और इट कुड turn out to be the other way around. Where it's not consensual from someone's side. Yeah. आप थोड़ी ना उनको बीच में रोक के बोल रहे अच्छा तुम लोगों ने कंसेंट किया था क्या ये करने के लिए एक्स्ट्रा. नहीं, मुझे नहीं चाहिए, डायरेक्टर को नहीं चाहिए, राइट? डायरेक्टर को अगर चाहिए भी वो डिस्कस नहीं हुआ था, तो पहले आप रोक के डिस्कस कर लो, फिर अगर आपको शूट करना है तो ठीक है. बट प्रोसेस है, अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जाइए, और फिर सी में आपको जहाँ दैट्स नॉट माई बिजनेस. डोंट डू इट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, डोंट डू इट वेयर इट्स नॉट बिन डिस्कस्ड, डोंट डू इट इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट. एंड इट इज़ हाउ इट इज़ विथ a scene of intimacy where I have had कि एक एक्टर भावनाओं में बह गए, वो सडनली फ्रीज हो गए बिकॉज वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा होगा उनके साथ, राइट? आप वो सिचुएशन नहीं चाहते हो तो आपको कभी ये भावनाओं में बहने वाला प्रोसेस अलाउ ही नहीं करना है. Which is why it's hands off the minute you say cut. That's the point. And there is very set protocol. Like you said, lights, camera, action wala jo logic hota hai. First AD usually uses the terminology where they say recording, sound recording, camera recording, set and action. Right? So उसमें set and action के बीच में होता है if there is disrobing or getting into position. And as soon as cut होता है, it's cut and re-robe, which means सब कुछ छोड़ दो, वापस अपने कपड़े पहन लो, या if there is nudity involved, या एक दूसरे को छोड़ दो and step away. That is the set protocol. That is what I said when I said कि आप as performers, when everyone is aware of the housekeeping rules of हम ये कैसे shoot करने वाले हैं,
इस क्लोज्ड सेट के रूल्स फॉलो करने हैं एंड वी हैव टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ दैट. इट इज़ एक्चुअली टू सेफगार्ड एवरीवन. लगता है कि बहुत रूल्स हैं, अननेसेसरी है, क्या ज़रूरत है, हम दोस्त हैं, वी आर कंफर्टेबल. यस, बट अगर आप दोस्त हो और आप कंफर्टेबल हो एंड डायरेक्टर भी कंफर्टेबल हैं, सब कंफर्टेबल हैं, सब अकॉर्डिंग टू एवरीवन सब कुछ अबव बोर्ड हो रहा है, तो रूल्स फॉलो करने में दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए. एग्जैक्टली. बिकॉज द रूल्स आर नॉट इलॉजिकल. ऐसा नहीं है कि somebody is saying के ओ and then walk out of the room or like something stupid, right? You're just being asked to stop when बिकॉज शॉट उतना ही था. शॉट उतना ही था, मिल गया, अभी आगे बढ़ो. हाँ, एग्जैक्टली. मैं ये भी जानना चाहती हूँ, इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर क्या फोटोशूट में भी अभी एप्लीकेबल है? Yes, if the performer requests one. So the thing is, our job role is still so new. I started working in 2020, end of 2020, November. So I would say 4 साल हुए हैं इस जॉब रोल को इंडिया में. We're not a mandatory job role. So outside of the fact that we're not a mandatory job role, if any performer requires an intimacy coordinator or requests an intimacy coordinator, they would be present for editorials. They would be present for TV advertisements. I give you an example. My team and I have worked on ads ranging from Invisalign braces to condom ads to deodorant ads, wherever they have, for whatever reason, had intimacy of some kind. So there is advertising also that uses intimacy coordinators. There is editorials like photo shoots and magazine shoots and all of that also that have intimacy coordinators, poster shoots that have intimacy coordinators, and of course television and OTT and film, and also live performance, which is plays. Okay, Theatre. plays, theaters. Yeah. How lovely. Being on the other side of it, I mean, being an actor, always, now I feel that how beautiful this, job role is. वैसे एक झटके में हो सकता है लोगों को लगे कि क्या ही ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है चल रहा है तो चलने दो, रिकॉर्ड कर लो जितना हो सकता है तो. बट दैट्स नॉट हाउ इट इज़ सपोज टू हैपन, बिकॉज एवरीबडी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इज़ थिंकिंग दैट इट्स अ जॉब. वो उनका काम है, वो काम करने आए हैं और वापस जाते हैं घर, अपने घर पे. Correct. तो वहाँ पे वो एक सेफ एनवायरनमेंट फील होना बहुत ज़रूरी है. कि जहाँ पे हो सकता है दैट पावर डायनामिक्स के लिए मैं कट नहीं बोल सकूँ, देयर इज़ अ पर्सन हु नोज वेयर टू कट. Yeah. हाउ ब्यूटिफुल इज़ दैट. Yeah. बिकॉज पता नहीं है कि मतलब मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, बट वंस अपॉन ए टाइम, मतलब आई वाज फिल्मिंग इन साउथ, तो एक फोटोशूट हो रहा था, फिल्म कवर. Okay. तो उसके लिए एक डांस पोजीशन में कुछ शूट हो रहा था. एंड आई फेल्ट दैट, आई मीन द फोटोशूट हो जाने के बाद भी वी वर इन दैट पोजीशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड बीइंग अ वेरी यंग गर्ल एट दैट मोमेंट. एनीवेज, मतलब वंस यू एज, आपके अंदर का एक हिम्मत आ जाती है व्हेन यू एज, with age rather. But when you are young, there is a lot of vulnerability in you, whether you always think that I'm new, I'm young, I'm little, whether I would be heard, or काम मेरे लिए precious है, काम मेरे लिए नया है, मैं कुछ बोलूँ तो I could be replaced. Yeah. Or maybe I'm thinking, sometimes it also happens, maybe I'm thinking too much. हाँ, ऐसा नहीं है. बाकी लोगों को क्यों, हाँ, you start gaslighting your own self. हाँ, कि मे बी आई एम जस्ट मेकिंग, मैं तिल का पहाड़ बना रहा हूँ, या आई डोंट वांट टू बी हार्ड टू वर्क विद. या पर मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है ऐसा नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्या लोगों को कैसे नहीं दिख रहा है. सो लॉट ऑफ सेल्फ डाउट्स एंड ऑल, आप घिरे हुए होते हो. सो आई फील एंड आई विश कि मतलब एक
there was hardly anything. I mean, but I could immediately feel that it is, the hold is longer than it is Required. supposed to be. क्योंकि फोटोग्राफर फोटो शूट कर करके मतलब वो भी हाथ उतार लिया था ऑलमोस्ट ऐसा. So this is a wonderful position to be, and I'm so glad I'm doing this podcast ताकि ऐसे हर एक जगह पे, हर जगह ये पहुंच जाए. सिर्फ आम जनता नहीं, मतलब हर एक इंसान who is starting their journey, who is even doing their first film, they should know that this thing exists. चलो हमें ये इसका हम फ़ायदा लेते हैं और ये बहुत ज़रूरी है. Also now I want to ask, did the Me Too movement kind of actually start this whole thing? So it actually happened on the back of the Me Too movement for the West. Very interesting that the first time an intimacy coordinator was given credit was for a show called The Deuce. HBO का एक show था, The Deuce. Basically the show is about a sex worker. And उसका season 2 में Emily Mead करके एक एक्टर है. उन्होंने कहा था कि मुझे सपोर्ट चाहिए, मैं बिना इंटिमेसी प्रोफेशनल के ये सीन्स नहीं करूँगी, क्योंकि वो लीड एक्टर हैं और उनके साथ बहुत सारे डे प्लेयर्स थे, बिकॉज द स्टोरी इज़ अबाउट हर. थिएटर में इंटिमेसी डायरेक्टर्स इन ब्रॉडवे हुआ करते थे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. उनमें से एक को हॉलीवुड बुलाया गया कि आप ये पोजीशन लीजिए और ये काम करिए. एंड दैट्स एक्चुअली द फर्स्ट टाइम an intimacy coordinator got a credit on a screen related entertainment show, and that happened in 2018. So it was like literally on the back of the Me Too movement, at the back of the Me Too movement. But in India, for me, I feel कि Me Too movement was a very big reason for why when I started my journey that people were like, हाँ इसकी ज़रूरत है. Because we had just finished having the conversation of the fact that a lot of people feel unsafe, and a lot of people feel coerced, and a lot of people feel that they can't say no to doing things that they don't want to do. And when I say people, I mean ये logic है Me Too movement का, but कि हम automatically सोच लेते हैं कि perpetrator man है, victim woman है. अच्छा. In any case, when it comes to sexual harassment, हमारा first conditioning ये है कि perpetrator man है, victim woman है. But intimacy coordination में हम ये constantly reinstate करते हैं कि consent दोनों लोगों का required है. Doesn't matter उनका क्या gender है. आपका consent भी उतना ही matter करता है, किसी का भी consent उतना ही matter करता है. And I have had male actors who have turned around and said that they are not comfortable to do something. And I've also had directors turn around and say at one point of time, अरे but लड़की ठीक है तो उसको क्या problem है? But if the girl is fine to do the scene, how does the boy have a problem with it? मतलब जैसे कि लड़कों को uncomfortable होने का कोई हक ही नहीं है. Exactly. तो वो gender इतना lopside हो गया था in the space कि एक point पे जहाँ आप एक gender को सेफ फील कराने के लिए स्टेप्स ले रहे हो, एक और जेंडर है जो कॉन्स्टेंटली विक्टिमाइज, ऑस्ट्रेसाइज्ड एंड ऑल्सो टेकन फॉर ग्रांटेड फील कर रहा है, इन अ सेंस के उन्हें भी ऐसा लगने लग गया होगा. आई एम अज्यूमिंग, इट्स एन अजम्पशन, लग सकता है कि एक इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर को इसीलिए बुलाया है ताकि मैं कोई मिसबिहेवियर ना करूं. Then you start operating from that position of being के सब मुझे ही देख रहे हैं कि मैं कुछ गलती करूँगा. हाँ, such an awkward position for an actor, right? And it's such an unfair position to be put in for anybody. It's absolutely, it's so important. कितना अलग तरीके से मैं इस चीज़ को आज देख रही हूँ. और this started, और मे बी हम अगर पुराने एक्टर्स के बारे में भी बात करें जहाँ पे मतलब फूल भी दिखाते थे, लेकिन कई सारे सीन्स दिखाते थे, स्पेशली विक्टिमाइज्ड सीन्स जो शूट हुआ होता था. हाउ डू यू थिंक मतलब दैट वुड हैव वर्कड, मतलब वो कैसे करते थे?
मैंने कहानियाँ सुनी है, मुझे और कुछ नहीं, इतना ज़्यादा नहीं पता. मैं एज एन एडी 2 या 3 इंटीमेसी सीन्स पे काम कर चुकी हूँ, जहाँ मैं एज एन एडी थी. मैं इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर नहीं थी, मुझे ट्रेनिंग नहीं थी, वो सब नहीं था इनिशियली मेरे करियर के एकदम बिगिनिंग में. जो मैंने समझा था फॉर अ लॉट ऑफ केसेस वॉज के चलो चलो जल्दी ख़त्म करते हैं, लेट्स गेट इट आउट ऑफ द वे. इट्स नॉट पार्टिसिपेटरी कंसेंट when I say that, you know, ke we are doing it for a vision, we are excited to do something because we're excited not to do an intimacy scene but to do another day of shoot, and it's like any other day of shoot. It's not like that. It's like let's just get this out of the way. जल्दी जल्दी करके खत्म करके करो, क्योंकि निकालो, सबके लिए move थोड़ा on. सा It'll be stress relieving जब खत्म हो जाएगा, once you get it out of the way. And the other thing that I noticed is in a lot of cases वो कॉन्वर्सेशन बहुत कॉन्वल्यूटेड होती थी, तो वो नोइंग डूइंग गैप होता था कि क्या पता है और क्या करना है, उसमें बहुत बड़ा गैप है. क्योंकि अगेन वोकैब्युलरी, अगर आपके पास में करेक्ट वोकैब्युलरी नहीं है टू एक्सप्लेन अ सीन, व्हेन आई से टू यू एंड दे आर इन द थ्रस्ट्स ऑफ पैशन, It's like the way you read in a book. it's the way you read in a book, but you have assumed what is the thrust of passion, bhai? That it's a visual medium. हाँ, but what are you seeing in a thrust of passion? My imagination. Correct. So your imagination in a thrust of passion can be 2 people that are naked, that are running and bumping into each other and an atomic bomb is going off. Who knows? Right? It could be anything. So as a director or as a creative person who's trying to convey a message, they are trying to be respectful by not using vulgar terms to describe the exact movement. So they don't want to say the word orgasm, so they'll say, and I want to see climax. Right? And but what is climax? Are you seeing an orgasm? Okay, if you're seeing an orgasm, is there thrusting involved? मूवमेंट करा दो. मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट तो कुछ भी हो सकता है, राइट? बट आप वो कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते हो बिकॉज आपके पास में वो वोकैब्युलरी नहीं है, तो गैप है कॉन्वर्सेशन में, राइट? मैं क्या बोल रही हूँ, आप क्या समझ रहे हो? आपका इमेजिनेशन जो है, आप वो इमेजिनेशन करके बोल रहे हैं, मेरा इमेजिनेशन जहाँ तक सीमित है मैं वो इमेजिन करूँगी. या एंड देन फिर उसके बाद में देयर इज डिससैटिस्फैक्शन ऑन वन एंड. If there is what I wanted I have not got, or there is on the other end, ये क्या मांग रहे हैं मेरे से, ये तो डिस्कस नहीं हुआ था. I have not been given this information prior to where I now coming on set. Lack of communication bridging is something that I have noticed happen in front of me as an AD. Like I have seen that happen. I have also seen it happen where there is a bit where the director is like, I will roll the camera, you do what you want, and the actors are having a conversation about अच्छा तो फिर क्या करना है, and then they found one little loop of like 3 moves that they feel comfortable doing and वो 3 चीज़ें ही कर रहे हैं. neck face neck face neck face neck face neck shoulder face neck face neck face neck. why? because वो 3 चीज़ें उन्होंने कोरियोग्राफ करी हैं अपना दिमाग से कि उसको कंफर्टेबल लग रहा है, मेरे को कंफर्टेबल लग रहा है, तो जो कंफर्टेबली कर पा रहे बीच में हैं वो एक लूप मिड में ग्राउंड आया है, वही चीज रिपीट में चलता रहता है. जब तक I also want to ask, जैसे एक्शन डायरेक्टर, there are fighters who enact the scene and करेक्ट do. डेमोन्स्ट्रेट. हाँ, and like डांस मास्टर जी के असिस्टेंट तो सिखाते थे, पूरा वो स्टेप करके दिखाते थे. So is this also similar or it is only verbal? So my process personally, it's not the process of all intimacy coordinators, but my process does involve me having assistants and me demonstrating a dry action. When I say a dry action, I mean क्या पोजिशन होगी, आपको कहाँ बैठना है, कैमरा क्या देखने वाला है. I am fully clothed, the assistant is fully clothed. We're sitting on top of each other, or we're catching a certain position, or we're holding each other in a certain manner, and we'll show what the camera is seeing for the actor to see. We will not kiss or strip
like how you would not expect an assistant to give all the expressions and wear the costume. Yeah. So we will not give all the expressions and wear the costume, but we will do the dry action to show you what it will look like on camera. Oh, how wonderful. Because we feel also, at least in my process, I feel that if I personally am comfortable, only if I am comfortable to show something, then I can automatically make it easier for the performer to see कि हाँ ऐसे कर, अच्छा ठीक है कर लेंगे. एंड आई एम नॉट लीविंग इट अप टू कि मैंने कैसा डिस्क्राइब किया है एंड वर्बली क्या समझाया है एंड फोटो में क्या दिखाया है एंड ऑल ऑफ दैट. अगर मैं I just find it easier. I'm also someone that has a background in body movement and dance, and I've been on stage in performance when it comes to dance. I have a background in body movement. Just is easier for me to show. With me and my team, we usually it's just easier to show. We just put the camera. Okay, instead of stand-ins, we'll stand in. What is the scope of intimacy coordinator in India? धीरे धीरे लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल रहा है. लोगों को ऑल्सो ये समझ आ रहा है कि इट्स एन ऑल एनकम्पसिंग रोल. इट्स नॉट जस्ट वन थिंग और द अदर थिंग. इट्स नॉट जस्ट about safety and being like some form of like police on set, but at the same time it's also about creativity. It's also about safety. It's about a lot of different things. And also intimacy coordinators are required for very different kinds of scenes, not just for romance or for violence, but also जब माइनर्स के साथ में कोई सीन्स कर रहे हो या जब LGBTQIA+ कम्युनिटी के बारे में जब बातें कर रहे हैं, तो are we making sure that the representation of the community keep bearing in mind with intersectionality? It is not heteronormative. All of that, those things kind of come in as part of the job role of an intimacy coordinator. And धीरे धीरे लोगों को और समझ आ रहे हैं the layers of the work that we do. And I feel like उसकी वजह से और काम आ रहा है. And more people are recognizing the potential for the growth of this work. And I definitely think that we're very close to a point जहाँ हम at least एक mandatory policy ला सकते हैं कि अगर एक certain level पे intimacy हो रही है, तो how with action एक certain level पे होना ही चाहिए. Correct. एंड द रीज़न फॉर इट इज़ एसेंशली कि आप एक एक्शन डायरेक्टर को या एक्शन मास्टर को इसलिए लेके आते हो एट अ सर्टन लेवल ऑफ एक्शन बिकॉज यू डोंट वांट समबडी टू गेट फिजिकली हर्ट, राइट? एंड the logic is the same with intimacy coordination. You want to bring somebody in after a certain level of intimacy because you don't want them to get emotionally hurt. How wonderful. इनफैक्ट मुझे तो लगता है अभी एक्शन मास्टर बहुत मैंडेटरी हो गया. वेदर आप सीढ़ी से गिर रहे हो, जो कि मतलब ऐसा लगता है कि हाँ कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे भी आ गया है. एक रोड पे भागते भागते मतलब चेजिंग सीन है, शायद इजीली कर सकते, लेकिन मतलब मैंडेटरी हो गया है. तो hopefully intimacy coordination will also become like that. Because I can tell one thing to my audience. So me and my husband had done a OTT film, and considering the fact that he's my husband, and of course नहीं, जबकि वो हम लोगों ने अभी 2 साल पहले ही शूट किया है, बट कंसिडरिंग कि ही इज़ माई हस्बैंड, इट वॉज़ वेरी टेकन फॉर ग्रांटेड दैट वी वुड डू एन इंटीमेट सीन like very easily. But when it was the day of the shoot, or like the time of the shoot rather, हम दोनों ही इतने अनकम्फर्टेबल हो रहे थे, उस खुद को ही समझ में नहीं आ रहा था, what do we do? I mean, and that's when today when I'm sitting in front of you, I'm talking to you, I feel that actually, I mean, if it was well coordinated, it would have come out so much better. Instead of both of us trying to figure out what is what we how much to show, how much not to show, how much is actually to be kept in the bedroom, how much he's expecting, as a director. Yeah.
तो एक बार लग रहा था मतलब इतना तो नहीं मतलब और एक बार लग रहा था हाँ बट आई नो हिम, बट इतना बड़ा कश्मकश उस टाइम पे चलता है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई एम एक्टिंग विथ माई हस्बैंड। पर जब दूसरे के साथ भी आप काम कर रहे होते हो, इफ देयर इज अ प्रॉपर लाइक नॉट इवन पुलिस, आई मीन समथिंग जो आपको प्रॉपरली गाइड करे, वो सीन कितना अच्छे से हो सकता है। Exactly. नहीं, it's such a good point that you brought this up because आपकी relationship आपके husband के साथ अपने personal life में एक intimate relationship है, right? तो physical comfort is the only barrier जो आप दोनों के बीच में नहीं है, which is जो is probably one layer ahead of what two people who don't know each other हाँ. are going through, right? But when you're shooting, it's for a camera, it's how you're looking, it's what image you want to put out into the world, it's what is required for the scene, it's also characters. How much can that character, what is that character Yeah. doing? Matlab, it should not end up in a film being ke my husband's name is Akansh, so if I would say if Astha and Akansh are cast in a film, Astha and Akansh are Astha and Akansh, but if they are playing A and B are not the same people. exactly, Right? हाँ. So the vocabulary of intimacy for characters changes changes according to the character. Yeah. And when you are not in a coordinated atmosphere, you are put in a vulnerable position, you cannot stay in character because you're safeguarding yourself, you're making sure the camera is picking you up in a beautiful manner, you're not looking awkward, you're not looking weird, you're not overdoing it, underdoing it. Yeah, exactly. And you're thinking so दिमाग 6 जगह घूम रहा है, आप अपने कैरेक्टर में ऑथेंटिकली परफॉर्म नहीं कर सकते। एंड अगर वो सारी चीज़ें टेकन केयर ऑफ हों, then whether it is your husband or a person who you have worked with and have a rapport with and have the right sort of conversation and structure around, then you can be in your character more easily. At least that is the aim for the work. It is to allow the space for a performer to bring the character vulnerably in an atmosphere. It's not to take away the chemistry and make it rehearsed. Another thing that a lot of people say is इसमें chemistry चला जाएगा अगर उनको rehearsal कराओगे तो, और I can say sitting here that actually it is all the more एक structure मिल जाएगा। मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ, लेकिन अगर मुझे बोल दे कि खुद डांस करो, और उससे अच्छा है कि मुझे प्रॉपरली दिखा दे कि ये कैरेक्टर ऐसे डांस करता है। मतलब तरह तरह के डांस मूवमेंट्स आजकल हो रहे हैं, मतलब जैसे भी हो रहे हैं तो वो डांस डायरेक्टर ही डायरेक्ट करता है ना। और वंस योर स्टेप इज ओवर, कट कर देते, भले ही मुझे मेरा नेक्स्ट स्टेप याद है, लेकिन हमारा शॉट एक लाइन का है, दूसरा लाइन हम लोग नहीं लेंगे तो कट हो जाता। टुडे आई एम लाइक इतना स्ट्रक्चरली मैं इस चीज़ को समझ रही हूँ। आई एम सो ग्लैड दैट दिस थिंग हैज स्टार्टेड। आई वांट टू नो कि हाउ वुड पीपल हु आर इंटरेस्टेड कम इन टू दिस प्रोफेशन। वैसे जनरेशन में फिर बोल रही हूँ, तो इतना नया नया चीज़ देखा हमने, टेलीफोन देखा, हम लोगों ने नए नए प्रोफेशंस सुने। सो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर लोगों को इंटरेस्ट है तो वेयर डू दे स्टार्ट फ्रॉम? देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड theintimacylab.in। उस पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का सारा डिटेल्स अवेलेबल है। कितना लंबा है, क्या टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है। कितना लंबा है? 5.5 months. Yeah. I'm sure it is not like a small this thing. It's not. लोगों को लगता है कि it's like an AD who's coordinating. मुझे भी before I had gotten trained मुझे भी लगा था कि क्या ही होगा. As an intimacy coordinator, you're mental health first aider. You're a trauma-informed care professional. Understand bystander intervention. You understand the law and the legal systems of the area, the places that you work in. You understand the union systems and the labor laws of the places that you work in. You have to have understanding of filmmaking. Aesthetics, filmmaking, choreography, body movement. Outside of which you have to have understanding of gender, sexuality, diversity, disability,
race, color, caste, everything. So when you go through it, it actually is a much larger this thing topic. yeah. There is a training program which is a 20-week training program, 18 to 20 weeks. You can sign up for the training program, or then you can do smaller certifications, like for a lot of people for whom maybe the training program is too expensive or like a too big a time commitment, or they feel कि उन्होंने बहुत सारे topics अपनी previous education में already cover कर लिए हैं. So as to be an intimacy coordinator, then what you can do is you can download from the intimacycollective.in website. There is a hiring checklist available in the resources. And the hiring checklist is essentially a checklist for anybody can download it, open source, to see के क्या मैं ये सारे topics में proficient हूँ, and अगर मैं किसी topic में proficient नहीं हूँ तो मुझे उनके लिए courses करने, specific courses, shorter courses तो पूरा करने करने हैं. की जरूरत नहीं है, a part of it. You can do the shorter courses also, and the shorter courses are also available at the Intimacy Lab. And I think the industry should come and support this, because ये तो सबके हित में है. हम कोई भी चीज़ का ब्यूटिफिकेशन करते हैं कि हाउ ब्यूटिफुल द टेबल इज़, हाउ ब्यूटिफुल द बॉडी इज़, सेंशुअलाइज करते कि मतलब कितना सीमलेस है उसका बात फिटिंग ही मान लो. इफ़ यू आर शोइंग इवन जस्ट द लेग ऑफ अ गर्ल, तो उसमें भी होना चाहिए ताकि द होल थिंग कम्स आउट एज एस्थेटिक. एग्जैक्टली जो थॉट है दिमाग में कि वो हम किस लिए वो लेग को दिखा रहे हैं कि शो द हाउ सीमलेस and How free beautiful flowing or and free beautiful, yeah. like feminine side of जिस तरीके से हम लड़कियों को देखते हैं, how beautiful, how free flowing, delicate and all. तो उधर भी उसकी ज़रूरत है मेरे हिसाब से. Yeah. And also, intimacy coordination, like I said, also you can use for any kind of hypersexualization. What you're talking about is in a sense hypersexualization, because आप जिस चीज़ की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो कि in the male gaze you are trying to make something desirable, you're trying to make something attractive. हाँ, correct? Exactly. Comparing it to a female body or a structure or something like correct. that. हाँ. And when you do that, why you're doing that is because you're tapping into the audience's desirable like mindset कि ये body type, ये skin type, ये smoothness, ये वो सब desirable है, correct? तो आप कोई चीज़ को हाइपर सेक्शुअलाइज कर रहे हो एसेंशियली. जब आप मेल बॉडी को भी हाइपर सेक्शुअलाइज करते हो, ऑल ऑफ दीज डिओड्रेंट कंपनीज दैट आर देयर, where they've got this like 8 packs, this man is like spraying aerosol all over his body, and there's like suddenly 6 औरतें आके उसके ऊपर चिपक जाएंगी या ऐसा कुछ होगा, या ऐसा एकदम camera is zooming into these abs or these biceps or this back of this person. You're still doing exactly that. You're trying to make something look more desirable. तुम मेरा deodorant use करोगे, तुम ऋतिक रोशन जैसे दिखोगे. That is the logic, right? So when you do something that involves hypersexualization, it is good to have an intimacy coordinator present. Is the person जिसको hypersexualize करा जा रहा है, क्या वो comfortable है इन शॉर्ट से? एग्जैक्टली, मतलब जिसका बॉडी दिखाया जा रहा है. हाँ, और कैसे दिखाया जा रहा है, दैट्स द पॉइंट. गुड फॉर बोथ द थिंग्स, द पर्सन हुज बॉडी इज शोइंग और एंड फ्रॉम द डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि आप जो दिखाना चाहते हो वो सही तरीके से दिख भी रहा है कि नहीं. करेक्ट. I wanted to talk to you out of curiosity, but like a child I asked all the questions maybe जो एकदम layman के दिमाग में भी आ सकता है, also from the point of view of an actor. मुझे दोनों हिसाब से बहुत ही ये interesting लगा. This is one of a very educational and a podcast which is very close to my heart. I've learnt it with my life that you are not alone. There's always somebody somewhere who would resonate with your thoughts. अगर आपको भी ऐसा लगा कि ये conversation आप लोग को बहुत ही मज़ा आया सुन के, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, सेक्स सीन जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, उसकी विषय में तो लोगों के क्यूरियोसिटी ऐसे ही बहुत होते हैं. तो आज हम लोगों ने एक्चुअली जाना कि वो किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से उसको एक्ट
एक्टर्स भी मतलब वल्नरेबल फील करते, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उन लोगों को ध्यान रखते हुए, अपार्ट फ्रॉम टेलिंग कैसा लगा करके, तो बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत कंफर्टेबल नहीं लगता है. तो उनके लिए ये जो एक कोऑर्डिनेटर है, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, सो ब्यूटिफुल अ प्रोफेशन. रिसर्च कर करके ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालती हूँ जिनसे बात करके कुछ नया सीखने को मिलेगा. whether you want to choose it as a career or you just want to know about it, क्योंकि जानने में क्या हर्ज है. Yeah. You are always broadening up your vision the more you know about. Comment तो कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ don't forget to like, share and subscribe to the Deveena Banerjee show. And thank you so much आस्था, लेकिन मुझे तो बड़ा मजा आया आज. मतलब ये मेरा फेवरेट पॉडकास्ट हुआ. Oh my God, thank you. ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. Thank you so much.